welcome Dr. Gaurav Full to share his experience, his thoughts, and a speech. Thank you. Over to you, sir. Thank you so much, sir. So I'll start my deliberation now. Actually, I have done my post-graduation in Ayurvedic surgery. So with this background, sir has given my introduction very beautifully. So I'll start the presentation now. May I, sir? May I start? Yeah, please, sir, please. Yes. Yes. Yes, sir. It is fine. It is So visible. my topic for today is my topic for today is rich heritage of Indian system of medicine and its relevance in the present era. So I'll divide my presentation into three basic topics. First one is faculty development in lines with Vedic literature. Second is rich heritage and legacy of Indian system of medicine. And third is the relevance in present scenario with special reference to COVID-19. So as this is a faculty development program, I'll start with faculty development only. There is a beautiful quote in Charak Samhita which says, Kritsno hi loko buddhimatam acharya, shatruscha abuddhimatam. Means, for a wise man, the whole world is a teacher and it is enemy for a fatuous. Means, unwise people see see enemies others, but wise person thinks everybody as his guru. He tries to learn something from everyone. Then in Sanskrit, there are various words used for teachers, which has their own meaning. Like the teacher who gives you information is known as Adhyapak. The one who imparts knowledge combined with information is known as Upadhyay. Who imparts skills is known as Acharya. Who is able to give deep insight into a subject is known as Pandit. The one who has a visionary view on subject and teaches to think in that manner is known as Dhrishta. And the one who is able to sorry just a minute. And the one who is able to awaken wisdom in you, leading you from darkness to light, is known as Guru. So it is very difficult to become a Guru actually. And it is rightly said that Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. So everyone should strive to become a Guru. Then qualities of teacher or researcher as told in Vedic science are Vidya, Vitark, Vigyan, Samriti, Tatparta, Kriya. Means one should has knowledge, reasoning, argument, and scientific approach to a subject, diligence, and he should be ready to do work practically. So that makes a researcher a best one. Then methods to attain knowledge are Adhyayan, Adhyapan, and Tadvid Sambhasha. Means firstly you have to learn, then you have to teach, and then Tadvid Sambhasha means healthy discussions like in seminars, workshops, CMEs, ROTPs, FDPs, webinars, etc. So like this one. So these kind of workshops are really helpful to increase your knowledge, and these are the best methods to gain knowledge. So with this background, I'll come to the topic now, that is rich heritage and legacy of Ayurveda. So Ayurveda is the science of life. It has been said, Tasya Ayushya Punyatamo Vedo Ved Vitamata. It has been originated from Ved, and it is a sub part of Atharvaveda actually. And Ved are the oldest literature known in the mankind. So it is the oldest time-tested science, having principles and treatment guidelines which were way ahead of its time. Ayurvedic scholars laid down such treatment protocols, patient care methods, and lifestyle guidelines which have stood by test of time, precisely explained everything without help of present scientific gadgets and investigative procedures. So this is the most amazing thing. I'll be sharing a few of the principles of Ayurveda
which have stood the test of time. And way back, thousands of years back, they have been explained in Ayurveda, and slowly the modern world is now accepting those and identifying its importance. So first of all, I'll start with the branches. Ayurveda has 8 specialties, basic specialties, which are known as Ashtanga Ayurveda, and they have been subdivided into 22 specialties now. The concept of holistic health was first of all given by Ayurveda only. Ayurveda says the healthy person is sam dosha, sam agni, sam dhatu mal kriya, prasannatma indriya mana swastiti avidhyate. Means we always believed that health can never be achieved completely with only physical well-being. Health in real sense means normalcy of all physiological and anatomical parameters of body, along with healthy mind, intellect, and all senses. So this is the complete definition of health. And in 1948, WHO has also recognized this importance, that it's not merely physical health. A health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity is now known as definition of health. Then holistic approach to the patient. This is very unique to Ayurveda again. It has been said, Gyan Buddhi Pradeepen Yona Vishti Tattvit Aturasya Antaratmanam Na Saroga Chikitsiti. Means the doctor who uses his wisdom to enter the subconscious mind of the patient, the inner soul of the patient, he can only treat the patient properly. So this is a very unique concept of Ayurveda. And Ayurveda also advises to be empathetic towards the patient and to treat patient as physician's own son, because patient trusts the doctor more than his family members. We all know this. When we get ill, we trust the doctor blindly. So we have to take care of the patient like our own children. Then preventive aspect of the health. It has been said, the prayojanam cha asya aturasya swasthasya swasthya rakshanam and aturasya vikar prasvanam cha. So first principle of Ayurveda is to maintain health, and second is to cure the disease. There are basic fundamental concepts like dincharya, means daily regime, ritucharya, seasonal regimens, sadvarit, moral ethics, achar rasayan, ahar vidhi vidhan, very important. How we should take food, what kind of food, at what time, this all has been beautifully explained in Ayurveda. And these all things guide us to a healthy, disease-free life. And at present, almost all streams of medicines agree that prevention is better than cure. Then, customized approach. Ayurveda teaches us to treat each individual according to his body form, doshic predominance, prakriti, season of the year, etc. And this is the unique concept of Ayurveda. We don't treat every patient like on one lines. Everyone fits all is not the concept of Ayurveda. We say Purusham Vikshya Sagyo Vishakuttama. Means physicians should analyze different persons as one entity and then treat them accordingly. And nowadays, Western science has also accepted the concept of precision medicine, which has the same motto. Then biological clock. We all know in 2 years back, in 2018, the Nobel Prize for awarded for discovering the biological clock, which says that physiology of the body changes with the time duration of the day. So this has been also explained way back in thousands of years back in Ayurveda, which is you can see on your left side of the screen, Ayurvedic clock, which says in the morning time there is predominance of the kapha dosh, in midday pitta dosh, and in evening time there is predominance of vata dosh. And accordingly, the physiology of the body differs according to the time period. So you can see people are getting Nobel Prize on the concepts which were already told in our traditional medicine. Then reconstructive surgeries, again important. You'll be amazed to know that world's first plastic surgeon was an Ayurvedic surgeon, Acharya Sushruta, and he is still known as father of surgery. Techniques of skin grafting and reconstructive surgery like external ear reconstruction, nasal, labial reconstruction have been explained by him. Head transplant surgery is also mentioned in Ayurveda, and even the vascular surgeries were also explained. Head transplantation surgery is one example is in mythology also, that is Bhagwan Ganesh. Then the principles of skin grafting told by Sushruta are still relevant and acceptable in spite of so many advances. Nowadays also the principles are the same and people follow them. You can see in this picture
This is known as Indian rhinoplastic technique, as told by Sushruth. There was a news few months back that there was an Afghan patient whose nasal reconstruction surgery failed 3 times. Then Indian surgeon opted for the technique told by Acharya Sushruth, and it was a successful surgery. Then it became a big news. So this was the insight of the ancient Ayurvedic physicians. Then bone and joint injuries. Without any investigative procedures and radiographic advancements, Sushruth has explained 12 different types of fractures and 6 different types of dislocations. You can imagine, without any X-rays, CT scans, MRIs, they have told the different types of fractures and dislocations even. He has also advised the treatment procedures and principles which are still followed and relevant. For example, traction, reduction, bandaging, splint application, etc. These principles are as such followed till date in orthopedic sciences. This is a beautiful contribution of Sushruth. Then surgical procedures like vesicular calculus, that is stone in the bladder, cataract surgery, intestinal perforation, intestinal obstruction, ascites, hydrocele, even cesarean section, and anorectal surgeries, which are still the forte of Ayurvedic surgery, like hemorrhoids, fistula, perineal abscess, etc. And you will be glad to know that 2 premium institutes of our country, like AIMS Delhi and PGI Chandigarh, they are also following the Ayurvedic procedure in fistula in ano to treat fistula in ano, and it has the best results in available treatments. Then 15 types of bandaging and 4 types of suturing. These all has been explained in Ayurveda. Then different surgical instruments, sharp as well as blunt instruments, were also explained in Ayurveda thousands of years back. Almost 100 blunt instruments and 20 odd sharp instruments were explained because they did surgery at that time also. Blood transfusion. Blood transfusion has been discovered in 1857 only, and as well as I know, in man-to-man blood transfusion, it took another century, means 1935 around, there was first man-to-man blood transfusion. But Ayurvedic texts have advocated the use of blood of various animals like deer, goat, buffalo through oral or rectal route, that is enema of the blood, to replenish blood volume. People used to make fun of this thing, that how can blood be given through GI? The recent studies have shown that Raktavasti, that is enema containing the blood of different goat basically, is now a well-established treatment in improving the condition of thalassemia major. जिन बच्चों को, छोटे बच्चों को थैलेसीमिया मेजर की कंडीशन में 1 वीक में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता था, जब उनको ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया तो उसके बाद कुछ मंथ्स तक भी उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी. Therefore, it shows how important is it to give Raktavasti. Then, importance of blood in maintaining life was well understood in Ayurveda. Then, stimulating the cortex, cerebral cortex with nasal root to treat the diseases of supraclavicular region. Ayurveda has claimed that nose is the entry gate to the head, as it has said, Dwaram hi Shirsonasa, means when we instill some medicine through nasal route, it is known as Nasya, and it can cure the supraclavicular diseases, psychiatric illness like Unmad, Apsamar, means like schizophrenia, mania, etc., and neurological disorders like facial palsy, and it can even revive the consciousness. So this was told in Ayurveda, and recently studies have shown that medicine in form of nanoparticles instilled through nose stimulates the cortex directly. So again, this principle of Ayurveda has been proven with time. Other very important concepts like medicinal use of dhatu bhasmas, means we always use some metals and non-metals like gold, silver, iron, copper, zinc, lead, etc., etc. After vigorous processing and purification methods, then it becomes in form of fine powder, which is known as bhasma. And nowadays there is an emerging trend of nanomedicine in Western science, which has the same. Earlier, Ayurveda was criticized to use metals and non-metals in the preparations, and Western people, they just what you can say, misguided the world that these medicines can damage your organs, and now they are coming to the same point. So, and there was a concept of man, and it means mind,
has an important role in maintaining the health of individual. This was always told. And recently in 1970s, the branch of psychoneuroendocrinoimmunology has now been developed in Western science. So they are again coming back to this thing that yes, mind has an important role. So friends, all these factors clearly explain the scientific approach of Ayurveda and also highlight that its concepts were way ahead of its time. It will take much more time for present scientists to match this legacy of our traditional system. इस सारे को बताने का मेरा पर्पस आपको ये है कि आप लोग ये समझ सको कि आयुर्वेद साइंस एक बहुत ही डेवलप्ड साइंस है और जो इसके साइंटिस्ट ने बात कही है वो आज की डेट तक भी लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए एंड दे ऑल कंसेप्ट्स आर प्रूविंग राइट विद टाइम. Not even a single fundamental concept of Ayurveda has been discarded by scientific evidences. So Ayurveda is a very scientific subject, a very scientific branch. So now the relevance of Ayurveda in present scenario means present era, the COVID era. We all are suffering from it and Ayurveda can show us the path. So I'll come to this topic now. Introduction. COVID-19, we all know, is an infectious disease caused by coronavirus, which is known as SARS-CoV-2. Route of transmission is through coughing and sneezing. Virus enters the other individual through mucous membranes like nose, mouth, eyes. And diagnostic criteria, diagnostic testing is RT-PCR, that is real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction. Clinical manifestations can be divided into three major categories like mild, moderate, and severe. 81% of the patients are mild, good for us. That is, they have features like mild fever, cough, dry cough, sore throat, nasal congestion, malaise, headache, muscle pains, or malaise. And we have seen that practically in India, patients are coming with GIT complaints also, like diarrhea. Sometimes there is only loss of sense of taste, loss of smell. These are the complaints of COVID positive patients. Then moderate cases, they have cough and shortness of breath. That is known as tachypnea, means respiration rate increases. That is present without signs of severe pneumonia. Then severe conditions have features like severe pneumonia, acute respiratory distress syndrome, adult respiratory distress syndrome, sepsis, and septic shock. Severe pneumonia includes fever associated with severe breathlessness, respiratory distress, high respiration rate, and hypoxia. That is, deficiency of oxygen is there. Fever may be moderate or even absent. So all in all, critical illness accounts for only 5% of the patients, that too in the geriatric age group. And it has features like respiratory failure, septic shock, and multiple organ failures. Then it is difficult to revive the patient. Pathophysiology, just briefly, I won't go in details. Basically, coronavirus mostly affects the lungs, pulmonary system. So there are different alveoli, which you can see in the picture here. So alveoli have the function of perfusion of air. We breathe in, air goes inside, and through alveoli it goes to the blood. But when there is infection of coronavirus, there is inflammation in the alveoli and fluid accumulates inside the alveoli. That's why the perfusion of oxygen is hampered and there is deficiency of oxygen. Slowly the lung starts to collapse. There is edema and pulmonary failure. So this is the basically pathophysiology of the coronavirus. It is a global health challenge. We all know in present scenario of this global pandemic, even countries like having best of resources like UK, US, Italy, Spain, they all are struggling to get over this coronavirus disease, because which is evident from huge number of cases and lives lost. America may more than 2 lakh people have lost their lives. This has raised many questions on approach of modern system of medicine in dealing with this newly diagnosed disease. Means they don't have enough weapons in their armory to deal with it. Notorious nature of the virus. The virus had always tendency to mutate. कोरोना वायरस की बात करें तो 3 अलग अलग इन्फेक्शंस अभी तक हो चुके हैं. सबसे पहले सार्स कोवी 2002-3 में सार्स वायरस आया, देन मर्स इन 2012. Then there are different outbreaks, viral outbreaks, which caused pandemics like polio epidemic, Spanish flu, Asian flu, then AIDS, H1N1 swine flu, then Ebola pandemic, Zika virus. So we can see every time newer vaccines are needed to be developed and different combination of remedies are tried.
but often without satisfactory outcomes. So we need to think differently. This shows that this is a wake-up call. Western system needs to think differently. Why we are not able to combat them? A recent study showed on global seasonal influenza associated respiratory mortality, which showed that almost 4 lakh deaths from respiratory causes are associated with influenza-like illness on an average in the year, which is 2% of all respiratory deaths. This shows there is some major problem in our thinking, because we know of the nature of the disease, still we are not able to combat it. This strongly indicates the need to work on developing better immunity and making our bodies capable of fighting against different infectious agents rather than looking for newer solutions every time. See, अभी तक इतने सारे पेंडेमिक्स हुए, कल को में भी कोरोना वायरस 3 आ जाए, 4 आ जाए, या हांता वायरस आया और कोई नया वायरस आ जाएगा, परसों कोई और नया वायरस आ जाएगा, तो कब तक हम बार बार वैक्सीन ढूंढते रहेंगे? कब तक हम लोगों की जाने यूं ही जाने देंगे? क्यों ना हम पहले से तैयारी करके रखें, अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बनाएं, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके रखें, सो दैट वी कैन नेचुरली फाइट दिस डिजीज. So here comes the role of Ayurveda. This aspect can be completely fulfilled by adapting Ayurvedic approach, because it recommends treating an individual as a whole rather than targeting the causative agent only. Ayurveda has been the benchmark of healthcare system of India for ages, and we should see China. In China, their traditional medical system has played a major role in managing this disaster, working in tandem with modern medicine. The outcome is in front of the world. They have managed such a huge crisis in an efficient way, and now China is on verge of recovery. So this precedent should be followed in India also. We should take a leaf out of their wisdom, that traditional medicine has a very important role in managing such kind of disease. According to Milind Pant, the CEO of Amway Global, he says, crises like outbreak of coronavirus provides an opportunity to revisit the ancient wisdom of Ayurveda for prevention of disease through improved immunity and combine it with Western science for a holistic, healthy living. So, friends, we should think about it. Ayurveda has a multifactorial approach, right from the birth to the end of life. If we adapt Ayurveda, we can have really good life. We can add life to the years we live. Then I can the literature contains elaborated knowledge about epidemics, their origin, implications, and methods to deal with them under the heading of Janpadodvans, means mass destructions. The concept of different microbial viral infections is also mentioned in Ayurveda under the description of Krimi. Then there are ample description of antiviral remedies also, and other modalities to deal with the viral infections. The modalities like Nasya, Dhupan Karam, Raksha Karam, I'll come to them only. So there are different elaborated knowledge of this pandemic or epidemic. So I'll come to that. Then Ayurvedic perspective. What we believe, Ayurveda has a unique approach in dealing with newly diagnosed disease, that it can be managed according to dosha involvement. We believe there are 3 basic dosha in the body, like Vat, Pitta, and Kapha, and presenting symptoms of each illness. Acharya Charak has said that it is not possible to name every disease, every new disease. It's not important whether we are able to name it or not, but we have to treat it as new entity, and 3 factors are needed to be considered. First one is natural history of the disease, which is known as Vikar Prakriti. Second is etiology, that is Samuthan Vishesh, and third is site of pathology. And with these 3 factors, we can combat the new disease and then treat it accordingly. So understanding the pathogenesis, basically according to Ayurveda, the natural history, it comes under the exogenous disease, which are known as Agantuj Gad. These are caused by microorganisms, pathogens, toxins, polluted air, etc. There are ample references of infectious, that is Prabhavaj Rog, and communicable disease in Ayurveda. The pandemic evolution of this viral disease can be categorized under Janpadodvans, as I told earlier. Acharya Vagbhat, one of the ancient scientists of Ayurveda, has beautifully explained the epidemics by quoting that people having different food habits, different tolerance for, different body types can get infected at the same time due to exposure to impure air, water, etc. So he has quoted, Bhin ahar vai satme prakriti naam samam bhavet eko vikrit vayu adi yukpat sevanat gada, means
different individuals living in the same atmosphere, when they are exposed to impure water, air, etc., there is origin of the epidemic or pandemic. Then second point is etiology. We need to understand the etiology. As per Ayurveda, it is believed that pragya aparad means the wrong deeds. It leads to adharma, and it is believed to be cause of janpadudvans. It is believed that wrong deeds of human beings lead to different epidemics time and again. Whenever we disturb the nature, it retaliates in form of mass casualties. And we can see in the name of development, we are regularly disturbing the mother nature, and it retaliates in form of casualties in one way or other. For instance, dry rotten meat or meats of diseased aged animals are cause of influenza, cough, dyspnea, anorexia, vitiation of all three doshas, and sometimes death. This has been told in Ayurveda. And Chinese people consume different kinds of meats. According to Ayurveda, such foods can increase the tam gun, sattvaraj tam, the mansik gunas, and leads to disease. Interestingly, China has been the origin country of 3 major epidemics in the past few years, which can be attributed to their excessive meat consumption. And there were many theories which said that Wuhan mein wet market where different kinds of meats are being sold. This pandemic has been originated from there only. So we have to think on these lines. So we should try to avoid such kind of foods which increase our tamgun. The third point is the site of pathology. In this disease, majorly respiratory system is involved, and major features include cough, dyspnea, fever, running nose, etc. Although, as I told, the GIT involvement is also found in India, like diarrhea, etc. Then comes the management plan. How should we approach? The basic principles of Ayurveda are two principles are there. First one is preventive approach, and second one is curative approach. So preventive aspect, most important aspect of Ayurvedic management. So Ayurveda says we should move away from affected places. This is the foremost measure. Avoid the countries or regions where epidemics are spread. So this has been followed in present time also. There is concept of social distancing, then stay away from red zones, and etc. etc. We all know that. Then other measures are told like atonement, auspicious rites, repeated recitation of sacred incantations, havan, dhupan, that is lighting of sacrificial fire. हमारी ट्रेडिशनल उसमें हिंदू कल्चर में या हमारे इंडियन ट्रेडिशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हवन करने का, धूपन करने का. So researchers have shown that this practice of fumigation with medicinal smoke, it is a potent method to disinfect the environment. And एक PubMed में आर्टिकल भी छपा था इसके ऊपर इम्पोर्टेंस शो करते हुए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें अपने ट्रेडिशंस को याद रखना चाहिए. धूपन करने के लिए हम कैसे किन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं? गुग्गुल, वचा, सफेद सरसों, नीम के पत्ते, कपूर और घी, गाय का घी इत्यादि. इनमें से इनको यूज करके हम धूपन कर सकते हैं. ये बहुत अच्छे डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं एंड दे हैव द एंटीवायरल प्रॉपर्टीज आल्सो. सो अगर हम डेली धूपन कर्म अपने घर में करें तो बहुत फायदा हो सकता है. एटलीस्ट एक फोर्टनाइट में एक बार हमें जरूर करना चाहिए हवन. कम्युनिकेबल डिजीज का भी बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट में दिया गया है जिसमें एटियोलॉजी बताई गई है. उसमें बोला गया प्रसंगात गातर संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात सह शय्यासनात चपि वस्त्रमाल्य अनुलेपनात औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामति नरात नरम. औपसर्गिक रोग होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. तो प्रसंगात मतलब फिजिकल कांटेक्ट से, स्पर्श टच से, देन रेस्पिरेशन से, निश्वासात रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, सह भोजना साथ में खाना खाने से, साथ में सोने से, आसन ग्रहण करने से और दूसरों के कॉस्मेटिक्स वस्त्र माला वगैरह यूज करने से भी हमें कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती हैं. तो हमें इनसे बचना चाहिए. तो जैसे आज की डेट में हम फिजिकल कांटेक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं. देन अगर कोई मान लो स्नीज आउट कर देता है, आपके टेबल पे कोई बुक पड़ी है, पेन पड़ा है, उसके ऊपर पड़ जाता है, आप उस सेम पेन को यूज कर लेते हो, किसी के आप क्लोज यूज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, सो यू कैन गेट द इन्फेक्शन. सो वी हैव टू अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. जनरल गाइडलाइंस, ये तो हम सभी को पता है, यूनिवर्सल गाइडलाइंस है जो फॉलो हो रही है. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, हैंड वॉशिंग के लिए हमें एक सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसका रखना है ताकि हम प्रॉपर्ली धो पाए. इसके लिए आपको याद रखना है सुमन के.
सो ये जो है इसमें बस हिंदी में याद रखना है इसको। एस स्टैंड्स फॉर सीधा, लाइक दिस, उल्टा ऐसे हम हाथ धोएंगे। उसके बाद मुट्ठी, मुट्ठी मीन्स ऐसे, देन अंगूठा ऐसे आपको धोना है, देन नेल्स इस तरह से, और कलाई ऐसे। जब हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारे हैंड्स प्रॉपरली क्लीन हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जैसे कहा गया है कि 20 सेकंड से ज्यादा हमें हाथ धोने चाहिए, तो इट टेक्स टाइम ऑल्सो। इस तरह से पूरी तरह से वायरस का खतरा हमारे हाथ से हट जाता है। देन हमें छींकना कैसे है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी, ये सभी हमें पता है। अब एक और अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे मास्क की बात हम करते हैं, तो मास्क में बायोलॉजिकल मास्क की बात आयुर्वेद में बताई गई है। ये कंसेप्ट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स एंड गुड क्लिनिशियन डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा है, तो मैं इसको आपको शेयर कर रहा हूँ। लाइक आपको पीपल का पत्ता लेना है या आम का पत्ता लेना है, सरसों का तेल लेकर, सरसों का तेल लेना है करीबन आधा लीटर, उसको गर्म करना है, उसमें ये पत्ता डाल देना है, उसके बाद इसको फ्राई करना है। जब पत्ता फ्राई हो जाएगा तो पत्ते को निकाल देना है और तेल को छान के रख लेना है। अब इस तेल को हम बायोलॉजिकल मास्क की तरह यूज कर सकते हैं। इसको अपने जितने भी एक्सपोज पार्ट्स हैं वहां पे लगाना है, बाहर जाने से पहले नाक में लगाना है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आयुर्वेद का, नस्से जिसको बोलते हैं, मतलब आपको छोटी उंगली पे लेके और नाक में इस तरह से खींचना है अंदर पूरा एरिया पे, और हो सके तो अपने फेस पे भी लगाना है। और उसके बाद कुछ चम्मच इसके लेके हम अपने मुंह में डाल के थोड़ी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद इसको इधर उधर घुमाकर बाहर थूक देंगे और गर्म पानी से गागल्स कर लेंगे। तो ये दिस विल एक्ट एज अ बायोलॉजिकल मास्क फॉर अस। ये प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ द वायरस इनसाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम सभी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिस कैन बी एन वेरी इफेक्टिव मेजर। जब हम लोग ड्यूटी पे जाते हैं, अभी भी मेरी कोविड ड्यूटीज चल रही हैं, इवनिंग शिफ्ट में मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो जब हम वार्ड के अंदर जाते हैं, पीपी किट्स पहनते हैं, उससे पहले आई ट्राई टू प्रैक्टिस दिस, एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव। सो यू ऑल शुड प्रैक्टिस दिस। बहुत सिंपल चीज है, हम आसानी से कर सकते हैं। देन कम्स मास्क, फिजिकल मास्क जो है। तो फिजिकल मास्क में बेसिकली जो जनरल पब्लिक है, हम क्लॉथ मास्क यूज कर सकते हैं। क्लॉथ मास्क में आइडियली कॉटन के मास्क यूज करने चाहिए, और 2 लेयर में मास्क बनाने की कोशिश करें, जिसमें एक पॉकेट सी बना दें और उसके अंदर हम एक टिश्यू डाल के रख लें। तो टिश्यू को हम नेक्स्ट डे चेंज कर सकते हैं, नया टिश्यू यूज कर सकते हैं बीच से, और क्लॉथ को रीयूज कर सकते हैं वॉश करके। तो टिश्यू डालने से एक तो इसकी मल्टी लेयरिंग हो जाएगी, दूसरा हमारा मास्क जो है ये हमारे को इजी रहेगा यूज करने के लिए, और जो हमारी सिक्रेशन है वो बाहर गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एक क्लॉथ मास्क को यूज करने। देन कम्स द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। Basic guidelines told in Ayurveda needs to be followed to maintain your physical and mental health. So basic guidelines like pranayam, yogasan, marm chikitsa, achar rasayan, sadvrit. These are basically different moral ethics told in Ayurveda. And again, unique concept of our Ayurveda, जिसमें कि हमारे ट्रेडिशनल चीजें भी हैं जो थोड़ी बहुत मैं आपसे शेयर करूंगा अभी। देन दिनचर्या, डेली रेजिम्स, व्हाट शुड बी फॉलोड। सीजनल गाइडलाइंस, लाइक अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, वर्षा आने वाली है, तो इन ऋतुओं में हमें किस तरह का आहार विहार, कैसा खाना पीना यूज करना चाहिए, कैसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, वो सारा गाइडलाइंस आयुर्वेद में दी हुई है ईच सीजन के लिए। और ये कहा गया जब सीजन चेंज होता है, एक ऋतु खत्म होने वाली शुरू होने वाली होता है, तो वो जो 15 दिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए डिजीजेस कॉज करने के लिए। जैसे कि देखा भी गया बहुत सारी बीमारियां सीजनल चेंजेस से होती हैं, तो इसको बचने का आयुर्वेद में तरीका उन्होंने कहा है कि उन 15 दिन में हमें लाइट डाइट लेनी चाहिए, और धीरे धीरे पिछली सीजन का फूड छोड़ते हुए आने वाले सीजन के फूड पे आना चाहिए, जिसको पादांशिक क्रम बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आयुर्वेद का, जो बीमारियों से बचने में हमारी हेल्प करता है। देन रसायन चिकित्सा एंड आहार विधि विधान, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आहार को खाने के तरीके, उसको किस फॉर्म में यूज करना है, मींस जल्दी जल्दी नहीं खाना है, बहुत देर करके नहीं खाना है, एक प्रॉपर पोस्चर में बैठ के खाना चाहिए। आपको खाना खाते हुए आपका ध्यान खाने पे होना चाहिए। बेसिकली आप मोबाइल करते हुए और टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, उससे हमारी डाइजेशन हैम्पर करती है। बहुत ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, इमीडिएटली स्टोर्ड फूड नहीं हमें खाना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे इम्यूनिटी को खराब करती हैं, हमारी हेल्थ को खराब करती हैं। ये सारा कुछ आयुर्वेद में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। सो दिस पिक्चर शोज द मेंटल लॉकडाउन बेसिकली। सो अभी इस सारे इतने लंबे पीरियड ऑफ लॉकडाउन से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से, वी ऑल फील लाइक स्टक अप। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, हम सब देख सकते हैं, हमारा मेंटल स्टेटस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे बचने का आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, इसे प्राणायाम करना चाहिए रोज। इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपाल भाती, भस्त्रिका, इनमें से कुछ भी हम कर सकते हैं। देन योगासन, विश्रांतिकर आसन, मतलब जो आपके रिलैक्सिंग पोस्चर्स हैं उनको यूज करना चाहिए, लाइक शवासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, मकरासन एंड सूर्य नमस्कार आसन। तो
ये सारी प्रैक्टिसेस हमें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। कम से कम 30 मिनट तक हमें योगा और प्राणायाम डेली करना चाहिए। देन कम्स मर्म चिकित्सा। ये एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है आयुर्वेद की, और लकीली मेरी स्पेशलाइजेशन भी है, मैं इसमें काम करता हूँ। So it can be defined as technique to stimulate specific vital points of the body in a certain way at a critical moment of time for purpose of healing. These vital points are seat of prana. Prana means the driving force of life, which is also known as vital energy. Therefore, marm science is also defined as art of vital science. मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप ऐसा सोच सकते हो जहाँ पे कंसंट्रेटेड एनर्जी होती है, एनर्जी वहाँ पे फोकस्ड होती है उन पॉइंट्स में। तो अगर हम उनको प्रॉपर्ली स्टिमुलेट करते हैं डेली, तो वो हमारे सारे जो 6 चक्र होते हैं, षट चक्र होता है, उसको उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं और हमारे को डिजीज फ्री रखने में हेल्प करते हैं, इवन ट्रीटमेंट पर्पज से भी हमारी हेल्प करते हैं। तो ये मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ चीजें जो कि प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कुछ मर्म पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो यू कैन सी देयर आर डिफरेंट मर्म पॉइंट्स इन द बॉडी। 107 मर्म होते हैं बॉडी में, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मर्म है जो कि स्ट्रेस रिडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस देम डेली। सो आई विल शो यू। लाइक पहला मर्म है स्थपनी। स्थपनी जो होता है यहाँ पर होता है बिटवीन द थर्ड बोलते हैं नेत्र, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डायरेक्टली पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और हमें स्ट्रेस से बचाने में हेल्प करता है। इवन ये इतना पावरफुल होता है, आप देखेंगे कि कभी लोग हिप्नोटाइज करते हैं किसी को तो यहीं पे फोकस करते हैं, कोई गुरु जो होते हैं वो दीक्षा देते हैं तो वो यहाँ पर इसको यूज करते हैं प्राणिक एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो करना क्या है हमें, बेसिकली यहाँ पे आईब्रोज के बीच में ऐसे करके थंब रख लेना है अपना, और उसके बाद अपने हाथ को यहाँ स्टेबल कर लेना है साइड पे, और इस थंब के पल्प से आपको इसको ऐसे दबाना है, आईज को क्लोज कर लेना है और अपना फोकस जो है यहाँ पर रखना है। आपको जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, उस पर ध्यान देना है या ओम पे फोकस करना है, और इसको यहाँ पे से ऐसे दबाना है कॉन्टिन्यूस 8 to 10 सेकेंड। उसके बाद 4-5 सेकंड के लिए रिलैक्स कर देना है। उसके बाद फिर से दबाना है 8 to 10 सेकंड्स के लिए पीछे की तरफ, स्ट्रेट अवे पोस्टीरियरली इसको दबाना है। तो 2 मिनट तक हमें रेगुलर ये प्रैक्टिस करनी है। आप करके देखेंगे तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आपका सर हल्का हो गया, आपको रिलैक्स हो गया बिल्कुल। तो इस पॉइंट को हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। और इवन आप देखेंगे जब हम कभी स्टक फील करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो हम ऐसे करते हैं सोचने के लिए, ऐसे करते हैं। तो नेचर ने हमें ये ब्यूटीफुल एबिलिटी दी है कि जब भी हमें कोई जरूरत पड़ती है तो हम वो पोस्चर मेंटेन करते हैं जिससे हमें फायदा होता है। तो ये स्थपनी मर्म होता है। देन इंपॉर्टेंट मर्म इज अधिपति। अधिपति मींस मास्टर ऑफ द बॉडी। ये कहाँ पे होता है? टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे। षट चक्र का जो कॉन्सेप्ट है जिन लोगों को पता है, तो 6 के 6 चक्र को कंट्रोल करने का काम करता है। ये सहस्त्रार चक्र होता है यहाँ पे, और ये एग्जैक्टली जो ये वाला हिस्सा होता है टॉप आपका, जहाँ पे बाल घूमते हैं, मतलब जहाँ पे पंडित लोग चोटी रखते हैं, वो वाला हिस्सा अधिपति मर्म कहा जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली इन 5 फिंगर्स को ऐसे पल्प इसके इकट्ठे कर लेते हैं इस तरह से, और इसको यहाँ पर ऐसे रखते हैं और स्लोली इसको नीचे प्रेस करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, प्रेस करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। इस तरह से लगभग 1 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है और रिलैक्स करना है। तो 20 टाइम्स आपको एक बार में इसको करना है, और सुबह शाम दोनों टाइम आप इसको करेंगे। देन थर्ड मर्म इज विदुर मर्म। विदुर मर्म जो होता है, ये जो ईयर लॉब्यूल होता है, ईयर लॉब्यूल के पीछे आप फील करोगे तो यहाँ पे एक बोन होती है, बोन और ईयर लॉब्यूल के ग्रूव सी होती है, ये ग्रूव यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे, मतलब ये समझ लीजिए अपनी नोज की तरफ आपकी डायरेक्शन रहेगी फिंगर्स की, और इस तरह से आप इसको प्रेस करोगे, रिलीज करोगे, प्रेस करोगे, रिलीज करोगे, प्रेस करोगे, रिलीज करोगे। अगेन लगभग 1 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है और रिलीज कर देना है। तो इसको भी 20 टाइम्स आपको करना है। देन अनदर इंपॉर्टेंट मर्म इज अंश। अंश मर्म के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बाजू को ऐसे बॉडी के नजदीक ले जाते हैं और इसको यहाँ ऑपोजिट शोल्डर पे रखते हैं। इस तरह रखना है कि हाथ का जो ये वाला हिस्सा है ये आपकी कॉलर बोन पे आएगा ऐसे, और इसको थोड़ा अंदर की तरफ रखेंगे। मिडल फिंगर आपकी जहाँ पहुंच रही है उस मिडल फिंगर से इसको आप दबाएंगे, रिलीज करेंगे, दबाएंगे, रिलीज करेंगे। थोड़ा जोर से दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको पेन हो रहा है। ये पेन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे वाइटल एनर्जी होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप थक जाते हो कभी स्ट्रेस से, गर्दन थक जाती है, ड्राइव करते करते थक जाते हो, तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो। इमीडिएट रिलैक्स कर देगा ये आपकी मसल्स, और ये स्ट्रेस कम करने में भी हेल्प। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मणिबंध मर्म, मतलब रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट इज अनदर मर्म। तो यहाँ पर आप देखोगे ये इसके थंब के नीचे यहाँ पे एक स्नफ बॉक्स होता है, एक गड्ढा सा बनता है। यहाँ पर आप अपना इंडेक्स फिंगर रखोगे और एक ये जो बोन है इसके नीचे आप फिंगर रखोगे। इस तरह से आप एक ब्रेसलेट जैसा बना दोगे, अपने हाथ से टाइट करके पकड़ लोगे इसको। उसके बाद मुट्ठी को ढीला सा बंद करेंगे और इसको टाइट दबाते हुए मुट्ठी को इस तरह से घुमाएंगे 15 टाइम्स एक डायरेक्शन में,
देन 15 टाइम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा ही दूसरी रिस्ट में करेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। जब कभी हम सोच रहे होते हैं, हम हाथ के बॉडी के पीछे दोनों हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं कई बार, तो ये हेल्प करता है हमें डिसीजन मेकिंग में। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज तल हृदय। तल हृदय मीन्स पाम का सेंटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला नकल है हमारा, थर्ड नकल, ये जो पॉइंट होता है ये, इसके आगे यहाँ पर, इससे 1 फिंगर बिलो, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे, यहाँ पर हम अपने थंब से इसको ऐसे प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे। ऐसा ही इधर भी करेंगे, तो ये भी हमें बहुत हेल्प करता है। एंड लास्ट पॉइंट इज क्षिप्रमर्म। क्षिप्रमर्म जो है इस वेब में होता है, जो आपका मतलब अंगूठा और इंडेक्स फिंगर है, इसके बीच में जो वेब है यहाँ पे होता है। इसको हम इस तरह से यहाँ पे अंगूठे को रखकर और ऐसे इसको प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ये सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, उनको नींद इंप्रूव करने में और कंसंट्रेशन बढ़ाने में। तो इनको हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी लाइफ में, आजकल के टाइम में स्पेशली। हम ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर घी भी यूज कर सकते हैं, नारियल तेल यूज कर सकते हैं, गाय का घी यूज कर सकते हैं। तो हम उसको यहाँ से ऐसे मसाज करेंगे 2 मिनट्स रेगुलरली। तब उठाना नहीं आपको हाथ, लगातार 2 मिनट तक ऐसे मसाज करनी है। ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं, पाँव के तलवों में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। देन रेस्पिरेटरी और कार्डियक हेल्थ के लिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी इलनेस इसमें ज्यादा मिल रही है, उसके लिए इंपॉर्टेंट मर्म क्या है, ये जो आपकी बाजू है, जब हम इसको मोड़ते हैं तो यहाँ पे एक लाइन बनती है। इस लाइन से अगर हम एक मिड लाइन खींच दें ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे 3 फिंगर अबव, इस लाइन से 3 उंगली ऊपर, इस मिड लाइन से जस्ट अंदर की तरफ, यहाँ पर आणी मर्म होता है। इसको हम ऐसे दबाएंगे, रिलीज करेंगे, दबाएंगे, रिलीज करेंगे, और इससे 4 फिंगर और ऊपर चले जाएंगे सेम लाइन में, तो यहाँ पर पूर्वी मर्म होता है। ये थोड़ा टेंडर होता है, पेन ज्यादा होती है, इसको हल्का दबाना है क्योंकि इसके नीचे ब्लड वेसल होती है। इसको भी अगेन वैसे ही दोनों बाजू में हम इसको कर सकते हैं। और एक अनदर इम्पोर्टेंट इज हृदय, हार्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना हल्की सी मुट्ठी बनाकर यहाँ पे रख लेंगे मिड ऑफ द चेस्ट में, आंखें बंद कर लेंगे और धीरे से कंसंट्रेट करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी हार्ट बीट्स को फील करने की, और अपना ध्यान इस पे लगाएंगे, हार्ट पे, अपने हार्ट को फील करेंगे कैसे बीट कर रहा है। लगातार 2 मिनट तक हम इस पोस्चर में, किसी भी आसान पोस्चर में बैठ जाएंगे और अपने हाथ को यहाँ रख के हार्ट बीट्स को फील करेंगे। तो ये हृदय मर्म को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मर्म पॉइंट्स है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में, जिससे कि आप स्ट्रेस से भी बच सकते हो और अपने लंग्स को भी हेल्दी रख सकते हो। इवन जो 40+ पेशेंट्स हैं उनको ये रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो तनाव से बचने के तरीके बहुत सारे हम सारे लोग जानते हैं। वी शुड स्पीक आउट, डिस्कस करना चाहिए, इससे अवॉइड करना चाहिए। देन कम्स दिनचर्या, डेली रेजीम्स। इसमें हमें क्या करना है, वेकअप ऑन टाइम, टाइमली उठना चाहिए हमें। एटलीस्ट बिफोर सनराइज नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम 6, 6:30 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए। वर्शिप करनी चाहिए। उसके बाद कुछ गुनगुना पानी पीना है, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लेना चाहिए, और गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के गरारे करने चाहिए। देखिए, कोरोना वायरस की एक बड़ी स्पेसिफिक चीज है कि जब ये अगर कभी एंट्री कर जाता है हमारे नेजोफेरिंक्स या ओरोफेरिंक्स में, गले या मुंह से अंदर जाता है, तो ये 2 से 5 दिन तक अफेक्ट नहीं करता है हमारी बॉडी को। तब तक ये यहाँ पे स्टोर्ड रहता है गले में या नाक के पिछले हिस्से में, और वेट करता है उस एटमॉस्फेयर की जब ये अंदर एंटर करता है, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाता है सेल्स में, तब डिजीज कॉज करता है। तो अगर पहले 1-2 दिन के अंदर अंदर हम ये प्रैक्टिस अपनी रेगुलर कर रहे हैं, तो हम इसको वहीं के वहीं रोक सकते हैं, वहीं के वहीं मार सकते हैं। तो हमें गागल्स करने हैं, थोड़ा 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल देनी है 1 गिलास पानी में, और उससे गरारे करने हैं सुबह। देन जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, तेल या मेडिकेटेड ऑयल, या जैसे अपने बायोलॉजिकल मास्क में बात की, या घी को मुंह के अंदर भर देना है। उसके बाद इस तरह से रखना है, होल्ड करना है थोड़ा टाइम, उसके बाद इधर उधर घुमाना है जैसे हम कुरला करते हैं, और फिर स्पिट आउट कर देना। उसके बाद गर्म पानी से गरारे कर लेने हैं। इसी तरह से नस्य, नाक में तेल लगाने की प्रैक्टिस, ये हमें अपनी रूटीन में बना लेनी चाहिए। इससे हमारे प्रिवेंशन रहेगी। आपको पता ही है, लिपिड पार्टिकल्स होते हैं वायरस में, तो तेल जो है उसको उसका पाथ रोक देता है, उसको अंदर एंटर नहीं करने देता। तो हमारे को नाक में तेल लगा के ही जाना चाहिए, और स्पेशली इस एरिया में आपको तेल लगा के रखना चाहिए जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस हमें रूटीन में करनी चाहिए, और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इससे हमारे बाल अच्छे हैं, हमारी मेमोरी बढ़ती है, और ब्रेन की कोई भी बीमारियां नहीं होती। देन अभ्यंग, मसाज करनी चाहिए बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाज बहुत रिलैक्सिंग होती है, वी ऑल नो, और हमारी जो नर्व एंडिंग होती है वो स्टिमुलेट होती है इससे, तो हमें मसाज भी डेली करनी चाहिए। देन क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए, जैसे कि आयुष मिनिस्ट्री ने बार बार बोला है। तो आयुष मिनिस्ट्री ने जो काढ़ा बनाने के लिए बोला, उसमें उन्होंने बोला है कि जिंजर, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी और मुनक्का, बड़ी वाली दाग जो होती है, इनको डाल के काढ़ा बनाना चाहिए। इसको हमें रेगुलर पीना चाहिए। अदर हर्बल डिकॉक्शंस भी हम पी सकते हैं, जिसमें कि हम गिलोय, त्रिकटू मतलब सौंठ, मरीच और पिपली, काली मिर्च,
और पिपली जो होती है, और शुंठी सूखा हुआ अदरक, या फिर लौंग हो गया, इलायची, मुलेठी, दालचीनी, इनमें से जो भी हमारे पास हो उसके हम काढ़ा बना के पी सकते हैं। और डिजीज वाइज अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको अर्जुन की छाल डालनी चाहिए, तुलसी, दालचीनी और लौंग, इसको डाल के काढ़ा बनाना चाहिए, वो पीना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट है तो उसको गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए, और खीरा, करेला, टमाटर आदि का जूस पीना चाहिए। तो ये सारी चीजें अलग अलग काढ़े हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, और नहीं तो कम से कम हम आयुष पाथ हमें जरूर लेना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और हमें बीमारी से बचाने में हेल्प करेगा। देन गर्म पानी पीना चाहिए पूरा दिन। मेडिकेटेड वाटर पिए तो और भी अच्छी बात है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, आधा पतीला आप पानी लेकर उसमें 10 से 15 ग्राम धनिया डाल दो, धनिया को उबाल के रख लो, वो पानी छान के रख लीजिए और सारा दिन आप उसको पीजिए। ये जो होता है धनिया का पानी, ये बहुत ही अच्छा दीपन काम करता है, मतलब आपकी अग्नि को बढ़ाता है, आपकी डाइजेशन को अच्छा रखता है। सारा दिन आपको इसको ले सकते हैं। और नहीं तो षडंग पानी है, एक मेडिकेटेड वाटर का एक्सप्लेनेशन है आयुर्वेद में, ये भी मार्केट में मिलता है, आप इसको भी ले सकते हैं। पान के पत्ते पे आप थोड़ा सा कत्था, लौंग और इलायची ये लगाकर चबा सकते हैं, चूस सकते हैं। देन नहीं तो अजवाइन, काली मिर्च, लौंग और सेंधा नमक, ये थोड़ा थोड़ा एक पिंच मिलाकर इसको रोज खा सकते हैं आप। या फिर आज के सीजन में जैसे स्पेसिफिकली आंवला हो गया, सिट्रस फ्रूट्स, नींबू हो गया, मौसमी हो गई, या फिर मुनक्का, चौलाई का साग, परवल, करेला, यव, जौ जो होते हैं, शिगरू, मोलिंगा और इफेरिया, और गाय का दूध, ये सारी चीजें हमें हेल्पफुल होंगी इस सीजन में और इस बीमारी के लिए भी। अपने नेचुरल एलर्जीज को कभी स्प्रेस नहीं करना चाहिए, मतलब जो हमारे जैसे छींक आ रही है, खांसी आ रही है, यूरिन का अर्ज हो रहा है, स्टूल का अर्ज हो रहा है, तो हमें रोकना नहीं चाहिए। ये बहुत ही बीमारियों का कारण होता है। कॉमनली आप देखेंगे जिनको पथरी बनती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार बार अपना यूरिन रोक के रखते हैं। बहुत सारे लोग हमें से मीटिंग्स में होते हैं, अर्जीज आती हैं तो हम स्प्रेस कर लेते हैं, और ये बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कभी भी वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, इन वेगों को। तो अगर आपको अर्जीज आ रही हैं तो यू शुड ऑलवेज पास देम, कभी उनको रोक के नहीं रखना चाहिए। देन इवनिंग टाइम में हमें टाइमली खाना खा लेना चाहिए, एटलीस्ट 3 घंटे सोने से पहले, ताकि प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए, और हल्का सुपाच्य भोजन खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए। नाक में अगेन रात को 2-2 बूंद दोनों तरफ नाक में ऑयल की डालनी चाहिए। इसमें आप तिल का तेल, सरसों का तेल या मेडिकेटेड ऑयल्स भी यूज कर सकते हो, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। भाप ले सकते हैं, जिसमें कि अजवाइन और सेंधा नमक डाल के हम भाप ले सकते हैं। और टाइमली आपको सोना चाहिए और एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए, 6 से 8 घंटे में सोना जरूरी है। देन रसायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आयुर्वेद का, जो विच नरिश द टिश्यूज, रिजुविनेट बॉडी एंड माइंड, एंड दिस इज नोन एज रसायन द्रव्य। कॉमन एग्जांपल आर च्यवनप्राश, हम सारे जानते हैं, आयुष मिनिस्ट्री भी बहुत प्रमोट कर रही है इसको। अगत्य हरित की रसायन, ब्रह्म रसायन, त्रिफला, शिलाजीत, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। कुछ मेजर रसायन होते हैं ब्रेन टॉनिक्स, जो यूनिक है आयुर्वेद के कंसेप्ट, जिसमें कि मंडूक, पर्णी, शंख पुष्पी, गुड़ूची, मुलेठी, ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो ये सारे रसायन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगेंस्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनकी सलाह लेकर हम आपको इसको यूज करना चाहिए। इससे हमारी जो एजिंग डिले होती है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट थिंग है पोजीशन ऑफ द पेशेंट। अगर आपको लगता है सांस में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है किसी को, तो आप उसको उल्टा लेटने के लिए कहें। उल्टा लेट के हमारे लंग्स जो है ज्यादा खुलते हैं, तो आपको सांस लेने में आसानी होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाती है। तो आजकल इसको प्रैक्टिस भी किया जा रहा है आईसीयूज में भी, इवन जब ऑक्सीजन नहीं लगी होती तो पेशेंट को उल्टा लेटने को कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जिसको हम कर सकते हैं। देन क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिससे हम आयुर्वेद में मैनेज कर सकते हैं इस बीमारी को। पहला है अगेंस्ट पॉजिटिव एजेंट, सेकंड है अगेंस्ट डिजीज, थर्ड है कंबाइंड अप्रोच। तो फटाफट से, जैसे पॉजिटिव एजेंट एंटीवायरल, तो बहुत सारी आयुर्वेद में दवाइयां हैं जिनका एंटीवायरल इफेक्ट है, प्रूवन एंटीवायरल इफेक्ट है, जो कि पब्लिश हो चुकी हैं रिसर्चेज इनके ऊपर, जैसे कि नीम, लहसुन, गुगुल, अर्गवद, मुलेठी, आंवला, महानीम, कुटकी, करंजादी। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयां जैसे लहसुन, भृंगराज, भूई आंवलकी, अस्थिर श्रृंखला, कालमेघ, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा, सीडीएफ ने इसके ऊपर स्टडी करी, जिसमें पाया गया कि बहुत अच्छा एंटीवायरल और इम्यून स्टिमुलेंट है ये। गिलोय हम सभी जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी आयुर्वेद की दवाइयां जो हैं दे हैव एंटीवायरल इफेक्ट, और जो प्रूवन। अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट दवाई, जिसपे अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इवन आईसीएमआर इस पे स्टडी कर रहा है, और पतंजलि ने इस पे स्टडी की। उन्होंने शो किया कि इसमें जो ये है वायरल आरबीडीज और जो एस2 रिसेप्टर होते हैं, बेसिकली जब भी कोरोना वायरस एंटर करता है तो एस2 रिसेप्टर होता है बॉडी में, बॉडी सेल्स में, जिसमें अटैच करता है और उसके बाद वो चेंजेस लाता है। तो बेसिकली अश्वगंधा क्या काम करती है, वो ब्लॉक कर देती है इस एस2 रिसेप्टर के साथ अटैच होने से, रोकती है कोरोना वायरस को, जिससे कि उसकी एंट्री वीक हो जाती है और उससे इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। इसी तरह तुलसी जो है, तुलसी भी एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी होता है कोरोना वायरस की।
तो इसलिए ये दोनों बहुत ही पोटेंट दवाइयां हैं इससे बचाव में। ये इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो यहाँ पे कि जैसे ये रिसेप्टर है जिससे एंटर करता है, बेसिकली कोरोना वायरस अटैच करता है सेल में, देन उसके बाद ये इनसाइड द सेल जाता है और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तब ये बीमारी कॉज करता है। पर अश्वगंधा जब हम देते हैं तो ये इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस इस पे अटैच नहीं हो पाता और सेल के अंदर एंट्री नहीं ले पाता। अगर एंट्री ले भी लेता है तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, जिससे कि हम बीमारी से बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो ये कुछ दवाइयां हैं जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं हम इस डिजीज में। अश्वगंधा, तुलसी, नीम, महानीम, मुलेठी, आंवला, भुई आंवला की करंज, तो इस तरह से। सेकंड हमारा है अगेंस्ट द डिजीज, टारगेटेड अगेंस्ट द डिजीज ट्रीटमेंट। जैसे कि इसमें रेस्पिरेटरी इलनेस ज्यादा होती है, तो ये कुछ दवाइयां आयुर्वेद में जो कि हैविंग गुड इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइक द्राक्षा मतलब दाक, हरित की, आंवला, पिपली, इस तरह श्रृंगी होती है, कंटकारी, पुनर्नवा। तो ये बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि देन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने वाली और दवाइयां हैं हमारे पास, जैसे पुष्करमूल, अम्लवेतस, शटी, इलायची, हिंगू, हींग जो है, उसी तरह से जीवंती। ये बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखती हैं। कुछ पोटेंट फॉर्मुलेशन है आयुर्वेद की दवाइयां हैं, जैसे गोजीवादी क्वाथ, अबरक भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस, सीतोपलादी चूर्ण, तालीश आदि चूर्ण, पुष्करमूल आदि चूर्ण। कुछ काढ़े हैं हमारे, जैसे छठे आदि क्वाथ, बृहते आदि क्वाथ, नागर आदि क्वाथ। ये सारी दवाइयां क्या करती हैं, दे इफेक्टिवली ट्रीट्स रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लाइक कफ, कोल्ड, थोरेसिक पेन, डिस्निया, फीवर, और दे कैन बी वेरी इफेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर डिजीज। बट ऑब्वियसली आपको इसको खुद नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है। आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके एनी वन ऑफ दीज वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी दवाई आपके लिए बेहतर रहेगी, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। और श्वासहरी रस एक दवाई है, इसमें पतंजलि की रिसर्च में पाया गया कि ये म्यूकस एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करके एयरवे रिमॉडलिंग करती है। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और पर्टिकुलरली कोरोना वायरस में साइटोकाइनिन स्टॉर्म आ जाता है, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये उसको रोकता है। देन अणुतेल एक मेडिकेटेड ऑयल है, जिसको अगर हम नेजल रूट से डालें तो ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, और ये डिजीज के अगेंस्ट बड़ा हेल्पफुल होता है। इसी तरह और लंग फ्रेंडली मेडिसिन है कुछ हमारे पास जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड ट्रीटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड बी. So all in all, we can say Ayurveda works in this particular disease because it can inhibit the virus, overcome the infection, regulate immune response of the host, cut off the inflammatory storm, and promote the repair of the body. तो ये सारे फीचर्स फायदे जो है हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को करने से मिलते हैं, इसलिए इसमें एक इफेक्टिव रेमेडी होती है। ऑनगोइंग रिसर्चेज इन आयुर्वेद, इंडिया में अभी बहुत सारी रिसर्चेज इसके ऊपर हो रही हैं, और अभी आपने भी न्यूज सुनी होगी, पतंजलि ने क्लेम किया है कि उन्होंने इसकी दवाई खोज ली है और जल्दी वो मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, एंड प्राउडली आयुर्वेद हैज कम अप विद द सॉल्यूशन होपफुली। तो अभी दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर करोल बाग में तिबिया कॉलेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है सरिता विहार में, यहाँ सभी जगह हम लोग आयुर्वेद की दवाइयाँ दे रहे हैं, फुल फ्लेज आयुर्वेद ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एमपी जैसी बहुत सारी। तो कंक्लूड करने के लिए आई कैन से India can lead this fight against a global emergency, and this can pave the path of to new heights in healthcare system to combat any new health challenges in future and to deal with the other existing diseases which are increasing day by day. देखिए बार बार नई नई बीमारियां आएंगी, हर बार हम वैक्सीन ढूंढेंगे, रेमेडी निकालेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो क्यों ना हम पहले से तैयार करके रखें अपनी बॉडी को, क्यों ना हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें उस नई बीमारी से लड़ने के लिए। तो आयुर्वेद इसमें बहुत बखूबी रोल प्ले कर सकता है। Ayurveda is aptly called as Indian system of medicine. It has got all the potential to rule the traditional science. The age-old and time-tested science can bring newer and better solutions, and it definitely deserves the attention and faith of the government of India. It must be liberally before it becomes extinct or taken away by the West world in the name of herbal medicine or eagerly देख रहा है और वो solutions की wait कर रहे हैं हमसे. So I say fully should discuss the required by issue. So thank you. So here I end my presentation, and now it is open for discussions and. Thank you very much, Dr. Paul. Most The way